Hi guys, good morning. We'll wait for a couple of minutes for other students to join in as well. All right, good morning guys. So yeah, we have a significant number of students have joined in. Now, before we start today's discussion, were you guys able to see the video lectures? Like I understand कि अभी इस time पे workload आप लोगों का काफी है. All right, good. ठीक है. So the way in which we will move is we will discuss the conceptual doubts
as well as booklet doubts. ठीक है, दोनों का डिस्कशन करेंगे हम लोग. एंड in case you have any doubts and all, other than that, that will also be taken care of. ठीक है. All right, so now as I can understand, many of you have seen the video lectures. Are there students who have not seen the video lectures at all? ये partial completion ठीक है, मतलब जितना आपने कोशिश करी उतना हुआ. Okay. So then what's important to understand is what were the key subtopics that were covered in these two lectures. Let me take the conceptual doubts first and then फिर हम लोग booklet की तरफ move करेंगे. Okay, so booklet and all के questions में ज़्यादा time नहीं लगेगा. When you look at the nature of the questions that are there, they are pretty straightforward. Now जब आप लोग बुकलेट के क्वेश्चंस ऑब्जर्व करोगे तो उसमें यू विल फाइंड दैट क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. ठीक है, सो जैसे लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया मैंने आपको, इसमें मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगेगा. ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच करके रिवाइज कर करके भी करने की कोशिश करोगे तो भी 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगना था. नाउ जो लोग as in students who have not been able to see the video lectures and or have been not able to do the booklet yet, don't worry, वैसे भी इस क्लास का रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा. एंड आपके पास थोड़ा सा टाइम रहेगा अभी आफ्टर टुडेज लेक्चर, तो उसके बाद आप कवर अप करने की कोशिश करना. एंड व्हाट आई कैन डू इज कि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर अगर आपके कुछ पुराने डाउट्स भी रहेंगे तो वो भी आप पूछ लेना इन केस समथिंग गॉट लेफ्ट आउट. सो विल स्टिल बी एबल टू कवर इट अप. ठीक है, दैट्स नॉट अ वरी. All right, now when you would have seen the video lectures, so in that updated list, I hope everyone has seen the updated list. ठीक है, इसमें टोटल 11 लिंक्स है. ठीक है, हमने सेशन 1 में जो हमारा लाइव सेशन 1 था, इसमें हमने वीडियो लेक्चर 1, 2 and 3 कवर करा था लास्ट क्लास में, विच स्पोक अबाउट द periodic table. Like it had old classification or old methods of classification. Then it had Moseley's experiment, and you can say the modern periodic law. Then there was an entire discussion on understanding the structure of periodic table. And इसमें हम लोगों ने काफी टाइम स्पेंड किया था. And then
towards the end we talked about the effective nuclear charge. Okay. Now today's session is based upon lectures video links 4, 5 and 6. Right. These or 3 video lectures, they talk about 2 important periodic properties. So यहाँ पर periodic properties का discussion start हो गया था. One was atomic size. And the other was ionization energy और delta H IE, ionization enthalpy भी बोलते हैं इसको. ठीक है, इन दोनों properties का discussion हुआ था. And within each of these properties, सबसे पहले हम लोगों ने definition समझा. ठीक है, when we talk about atomic size, so how do we define atomic size? And if you would have seen the video lectures, isme I specified the fact that we talk about the experimentally observed atomic size. How do we conduct those experiments? So based on the kind of technique that you may have, what we are able to see are the nuclei. Electrons are not something which we can locate the exact position for. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के केस में प्रॉब्लम क्या है? Heisenberg's uncertainty principle prohibits us to understand the motion of electron around the nucleus. We can't exactly know the path that is being followed. So the definition of atomic size, it comes from the experimental observation of position of nuclei. Now, when we talk about understanding the position of nuclei, it depends upon how the compound is or how the element is present, and depending upon that we have these 3 types of measurements that are done for different types of elements. So there is covalent radius. This is typically used for elements which exist in form of molecules, covalent molecules. Sometimes also used for metals if they are making covalent bonds in certain compounds. Then you have metallic radius, which is typically used for metals, and it is understood by observing the crystalline structure of metallic solids, identifying the position of nuclei in their closed packed form, and then taking the distance between 2 successive nuclei. And third was van der Waals. Van der Waals radius is typically used for noble gases because they do not form bonds with other compounds. So यहाँ पर they are liquefied and solidified, and then the distance between the nuclei are measured. Van der Waals radius can also be used for covalent compounds, like hydrogen gas can also be solidified. It takes a very low temperature to do it, but then after doing that we can again measure the distance between the nuclei of successive molecules. ठीक है. अच्छा, अब ध्यान से एक और चीज सुनना, ये मैंने वीडियो लेक्चर के टाइम पे भी बोला था, बट मैं वापस से रीआइटरेट कर देता हूँ.
These all measurements, these are experimentally determined. ठीक है. Now, depending upon the source, you might have slight differences in the data. Let's say आप बुकलेट में से टेबल उठा के देख रहे हो, आप एनसीईआरटी में से साइज का टेबल देख रहे हो, या आप कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लाइक जेडी ली से उठा के देख रहे हो, तो you might find slight differences in the size of elements. Now please understand that it is completely normal and accepted, because we aren't really very numerically focused in terms of doing calculations of size. What we do actually want to understand is the trend, that कहाँ पर साइज ज़्यादा था एटम का, कहाँ पर साइज कम था, एंड उसकी वजह से बाकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पर कैसे फर्क पड़ा. ठीक है. सो द न्यूमेरिकल वैल्यूज ना तो आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, ना आपसे कोई एक्सपेक्ट करेगा कि दैट यू कम अप विद values of ions and atoms. They will expect you to understand the trends, and within those trends also please understand that the comparisons are not done randomly. ऐसा नहीं है कि एस एलिमेंट एस ब्लॉक के किसी एलिमेंट को रैंडमली किसी डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में कंपेयर करने को बोल दिया गया है, वैसा नहीं होता है. You are being asked to compare properties either across a period or down the group. ठीक है, लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू डाउन जाते हुए आप ये प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हो. ठीक है. देन अच्छा, इसमें आप लोगों को कुछ डाउट है? मतलब जो स्टार्टिंग पार्ट मैंने बताया अभी, जितना मैं बीच बीच में पूछता जाऊंगा, इन केस यू हैव एनी डाउट सो डू लेट मी नो. जो मैंने आपको अभी एटॉमिक साइज के डेफिनेशन के बारे में बताया, इस पार्ट में एनी पॉइंट दैट यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड? All right, so I'll take that as a yes कि आपको समझ में आ गया है. So after understanding the definition, we move on to the factors that affect this property. And इसमें हम लोगों ने दो factors का discussion किया था. The two important factors which affect is the principal quantum number of the valence shell electron. जितना ज़्यादा n का value होगा उतना बड़ा expected size रहेगा atom का. And the second property was Z effective, that valence electrons कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं. नाउ बेस्ड ऑन दैट, Z इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है, बिकॉज न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. नाउ इन दो फैक्टर्स के बेसिस पर ट्रेंड्स का डिस्कशन हुआ, एंड हमें जनरल ट्रेंड समझ में आने लगा दैट जब हम टॉप टू डाउन जाते हैं, ठीक है, ट्रेंड्स में जैसे मैंने आपको बोला दो तरीके के ट्रेंड्स डिस्कस होते हैं. एक तो डाउन द ग्रुप एंड दूसरा होता है अक्रॉस अ पीरियड. Across a period happens left to right. So down the group size बढ़ रहा है, and left to right में भी what we observe is size कम हो रहा है, because left to right principal quantum number of the outer electron remains the same, but the effective nuclear charge increases. ठीक है. And after understanding these trends, what comes as the most important part for you to understand are the exceptions.
नाउ एक्सेप्शंस पढ़ते वक्त what we did was we further segregated them from the point of view of easy or convenient method of remembering them. तो हमने इनको 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया. इनफैक्ट 2 पार्ट में आप मान लो SNP ब्लॉक के एक्सेप्शंस को एक साथ समझा, ठीक है, एंड देन उसके बाद डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस को समझा. सो SNP ब्लॉक के एक्सेप्शंस में what were the key exceptions if anyone would want to highlight? आपके सामने नोट्स है, ऐसा नहीं है आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने याद कर लिए होंगे, बट आप लोग आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे वीडियो लेक्चर्स देख के. सो इफ यू कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड what were the key exceptions in S&P block? So the aluminum and gallium. Right. So एक तो noble gases वाला भी था. That is not really an exception as such. It is more about the technicality that noble gases के केस में हम लोग रिपोर्ट ही वंडरवॉल रेडियस करते हैं, ठीक है. सो बाकी सब एलिमेंट्स का लेफ्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं, कोवलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस रिपोर्ट कर रहे हैं, बट नोबल गैसेस में neither of them is possible. So what we report is van der Waal radius, and because of that the size of noble gases comes out to be greater than expected, okay. And then as you said rightly, there is aluminium and gallium, इनका expected trend ऐसा था that size increase करेगा down the group, but radius of aluminium turns out to be slightly greater than the radius of gallium. And इसके पीछे का reason anyone would want to talk about? What was the reason behind it? Poor shielding. Poor shielding of what? Electrons, 3D electrons. Poor shielding of 3D electrons, right. ठीक है, थोड़ा स्पेसिफिकली बताएंगे कि पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स हुआ. सो इफ यू लुक एट द पीरियोडिक टेबल, राइट, तो उसमें इफ यू लुक एट द लेट मी एक बार ओपन द टेबल इटसेल्फ ताकि आप लोगों को रेफर करने में आसानी होगी. जस्ट अ सेकेंड. All right. So if you can see this, आपको दिख रहा है ना अभी पीरियोडिक टेबल? सो गैलियम के जस्ट पहले, दिस इज गैलियम एज द एलिमेंट. अब इस गैलियम के पहले आप नोटिस करोगे ये 3D एलिमेंट्स फिल हुए, ठीक है. अब 3D एलिमेंट्स फिल होने पे क्या ऑब्जर्व हुआ? दैट न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन ऐड होता जा रहा था एंड 3D शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा था जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, ठीक है, व्हेन वी आर प्रोग्रेसिंग लेफ्ट टू राइट. सो व्हाट हैपेंड वाज न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा था एंड उसको शील्ड करने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जा रहे थे, बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि ये d ऑर्बिटल में जा रहे थे
और हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था दैट d orbitals आर पुअर शील्डर ऑफ nuclear charge. As a result, Z effective became a dominating factor in case of gallium and led to a lesser than expected size. ठीक है, सो इसकी वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में एक्सेप्शन आया. अच्छा, देन इमीडिएटली आफ्टर इट मैंने एक और चीज वीडियो लेक्चर्स में समझाया था. Let us understand if that is also something you were able to catch or not. मैंने पूछा था कि एल्यूमिनियम गैलियम के बीच में एक्सेप्शन आया. ठीक है, now the similar thing is happening between silicon and germanium, right? जर्मेनियम के पहले 3d इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, तो जर्मेनियम का साइज भी तो सिलिकॉन से छोटा आना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हुआ? Anyone would want to present an explanation? Sir, can you repeat the question? थोड़ा तेज बोलो, आपकी आवाज नहीं आई. Sir, can you repeat the question? The question was that aluminium and gallium के बीच में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया गैलियम का साइज श्रिंक हो गया बिकॉज ऑफ द 3d इलेक्ट्रॉन्स दैट गॉट फिल्ड बिफोर इट. ठीक है, वही मैं चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में जर्मेनियम के पहले भी तो 3d इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, तो जर्मेनियम का साइज क्यों नहीं सिलिकॉन से छोटा आया? Sir, increase in the number of shells dominate. Right. Right. So now understand, this is something where मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी बताया था इस चीज के बारे में, and I spoke about this fact that many students from this point onwards start disliking chemistry because of the fact of this subjective nature. ठीक है, तो मैंने उस टाइम पर भी एक 5 मिनट का टाइम स्पेंड किया था, एंड मैं दोबारा से एक बार फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन वापस से यही चीज बोलना चाहूंगा. प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर इज सब्जेक्टिव इन नेचर. हम लोग जब प्रॉपर्टीज का एनालिसिस कर रहे हैं एंड उनमें फैक्टर्स का डिस्कशन कर रहे हैं, तो देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर इट सेइंग दैट फैक्टर 1 इसका इम्पैक्ट 10%, 20%, 30% है, फैक्टर 2 है उसका इम्पैक्ट 30% है. तो हम लोग सब्जेक्टिव सेंस में ही बात करते हैं that these are the primary factors. Sometimes there are some secondary factors also, but these are the primary factors. Now what happens is, हम लोगों से, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, हम लोगों से ये नहीं बोला जाएगा कि आप एक्सेप्शंस प्रिडिक्ट करो. ठीक है, हम लोगों से ये बोला जाएगा कि जनरल ट्रेंड आप प्रिडिक्ट कर दो. जनरल ट्रेंड कैसा होता है, जनरल ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, बट एक्सेप्शंस आपसे प्रिडिक्ट करने को नहीं बोले जाते हैं. एक्सेप्शंस आपको बताए जाएंगे कि इस पीरियोडिक टेबल में जो जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं उनमें की एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो आप ध्यान दो. ठीक है, उन एक्सेप्शंस के पीछे का रीजन समझो. ठीक है, उस रीजन को भी याद करो. बट ये नहीं बोला जाएगा कि कल को लेट्स से एक हाइपोथेटिकल टेबल क्रिएट करने लग जाएंगे तो उसमें कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शंस आएंगे. ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता. ऐसा क्यों है? बिकॉज इवन वी ऑल्सो कांट प्रिडिक्ट कहाँ पर एक्सेप्शंस आएगा. द ओनली थिंग दैट वी आर एबल टू डू इज अंडरस्टैंड इफ कहीं पर एक्सेप्शन आ रहा है तो हाउ दोज एक्सेप्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड. And in those explanations, sometimes you might find double standards. You might find कि ये क्या hypocrisy है, कहाँ पर आपने ये reason use कर लिया and वही reason फिर दूसरी जगह पे use नहीं करा. So
जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बोरॉन अल्यूमिनियम मैंने कह दिया, सॉरी अल्यूमिनियम गैलियम, मैंने कह दिया कि गैलियम के पीछे 3D इलेक्ट्रॉन्स का कैप्चर था. एज अ रिजल्ट यहाँ पर द इलेक्ट्रॉन्स गॉट एज इन द साइज गॉट श्रंक. बट जर्मेनियम के पीछे भी तो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पर भी ठीक है, उन 3D इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट आया होगा. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि उन 3D इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट आया नहीं होगा. बट नोटिस करना ना, यहाँ पर जो ऊपर से नीचे सिलिकॉन से जर्मेनियम जा रहे हैं वहां पर n का वैल्यू भी बढ़ रहा है. ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब आपस में जब फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो उनमें से कौन डोमिनेट करेगा इज समथिंग विच वी जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा. दैट इन केस ऑफ अल्यूमिनियम गैलियम, ठीक है, साइज बढ़ने पर एज एन n बढ़ने पर साइज बढ़ना चाहिए था. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन साइज घटना चाहिए था. तो दोनों में से पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स डोमिनेट कर गया. एंड गैलियम के केस में भी ऑब्जर्व दैट साइज गॉट श्रंक एंड सो मच सो दैट उसका साइज अल्यूमिनियम से कम हो गया. ठीक है, इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अगेन 3D इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट रहा होगा. साइज वुड हैव गॉटन श्रंक बिकॉज ऑफ दैट एज कंपेयर टू द एक्सपेक्टेड साइज. बट इतना नहीं हुआ कि सिलिकॉन के साइज से छोटा हो गया. ठीक है, इतना इम्पैक्ट नहीं आया कि सिलिकॉन के साइज से छोटा हो गया. तो स्टिल द डोमिनेटिंग इफेक्ट is increase in size because of the increase of principal quantum number. Now this is something which you will have to, as I said, accept with a caveat in mind, with a disclaimer in mind that हम लोगों को subjective understanding ही develop करनी पड़ेगी. And by the end of the chapter एक्सेप्शंस जो बताए जा रहे हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा एंड उनके पीछे का रीजन भी याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो आई होप. सर, हाँ सर एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो रहे हैं ना, भले भी थोड़ा ही ZF पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर थोड़ा तो करेंगे ना. थोड़ा धीरे बोलो क्योंकि आवाज क्लियर नहीं आई. सर एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में 3D इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जो पुअर शील्ड है. बट हाँ सर फिर भी वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा तो शील्ड करेंगे ना, तो ZF तो कम होगा. हाँ सो Z भी बढ़ रहा है ना. मतलब आप ये देखो ना, Z इफेक्टिव कैसा था, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा. तो ये चीज 1 से बढ़ती जा रही है. लेफ्ट टू राइट जब मैं जाता जा रहा हूँ एक एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड होता जा रहा है. एंड सिग्मा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भी ऐड होते जा रहे हैं. बट ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहे हैं, 3D में. तो जितना इनको शील्डिंग करना चाहिए था उससे ये कम शील्डिंग कर रहे हैं. तो ओके सर, अंडरस्टैंड. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देन इंक्रीजेस. लेफ्ट टू राइट वैसे भी इंक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट यहाँ पे इट विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. ठीक है, सो ये SN/P ब्लॉक का एक्सेप्शन था. अच्छा ठीक है, देन हम लोगों ने फिर D ब्लॉक के एक्सेप्शंस के बारे में बात करा था. राइट, सो D ब्लॉक के एक्सेप्शंस में भी हम लोगों ने एक फर्दर सेग्रीगेशन कर दिया था. ठीक है, अक्रॉस पीरियड, लेफ्ट टू राइट एंड डाउन ग्रुप. ठीक है, ये हमने सेग्रीगेशन किया था. तो D ब्लॉक में अक्रॉस पीरियड हमें क्या एक्सेप्शन देखने को मिला था. Anyone would want to highlight that? So 3D series में it is supposed to like decrease, but then it decreases at a for Cu and Zn. हाँ right, so left to right
ठीक है, लेट्स मैं ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, साइज वर्सेस द एटॉमिक नंबर. सो द साइज लेफ्ट टू राइट इज सपोज टू डिक्रीज. ठीक है, which was a normal trend that was going on for most of the elements, but then towards the end of the row in D block there was a slight increase in the size of elements. ठीक है, यहाँ पर जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन केस में ऑलमोस्ट सिमिलर साइज था, बट उसके बाद कॉपर एंड जिंक का साइज बढ़ गया था. ठीक है, यहाँ पे ऐसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इनमें साइज डिक्रीज हो रहा था, बट देन आयरन, कोबाल्ट, निकल के अंदर सिमिलर साइज आ गया था, एंड देन निकल, कॉपर, जिंक, निकल भी एक्चुअली सिमिलर साइज था, कॉपर एंड जिंक का साइज थोड़ा सा बढ़ गया था. तो ये आपके लिए की एक्सेप्शन थे. ठीक है, ऐसा ऑब्जर्वेशन एक्चुअली और 4D सीरीज एंड 5D सीरीज में भी ऑब्जर्व था. जैसे लेट मी एक्चुअली शो यू द डेटा. एटॉमिक साइज लाइब्रेरी पे मिलेगा क्या? अरे इसने एक ही बार में ले लिया. Let me show that graph, not this one. ठीक है, गूगल पे भी जाने के पहले ना ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू ही जाना चाहिए, रैंडमली कहीं से भी कुछ नहीं पिक करना चाहिए. सो जैसे ये आपके सामने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है. ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आप साइज का ऑब्जर्वेशन देखो कैसा दिख रहा है. सो ये एक कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन मिला फॉर एलिमेंट्स इन डी ब्लॉक. ठीक है, ये जो सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला इज द 3D सीरीज, एंड उसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि कॉपर एंड जिंक का साइज थोड़ा सा बढ़ के मिल गया. देन 4D सीरीज था यट्रिबियम वाला जो ग्रीन कलर में है, यट्रिबियम, जिरकोनियम, टैंटलम, ये वाला जो ग्रीन में है. ठीक है, नहीं टैंटलम तो एक्चुअली 5D में आता है. यट्रिबियम, हाफियम, नहीं हाफियम, यट्रिबियम, जिरकोनियम, नायोबियम, ये 4D सीरीज में थे. ठीक है, देन जो रेड वाला है लैंथेनम, हाफियम, टैंटलम, ये सब आपके 5D सीरीज में है. इन तीनों में ऐसा ही ऑब्जर्वेशन आया. ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे, मैं चाहिए तो यहाँ पर देखता हूँ, अगर ये पेस्ट हो जाता है तो इमेज, हाँ हो गया. ठीक है, सो इसमें ऑब्जर्व करना. So this became something of a curiosity. ठीक है, in fact platinum and palladium भी were cases इन एलिमेंट्स का साइज लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ गया. ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए. Anyone would want to highlight what was the explanation?
सर हाँ बोलो। फुल्ली फिल्ड डी सब शेल। तो उससे क्या हुआ? सही जा रहे हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। राइट, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया। ठीक है, वैसे तो डी ऑर्बिटल में थे, बट बिकॉज डी ऑर्बिटल में फुल्ली फिल्ड हो गए, तो एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से द शील्डिंग पावर और शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली इंक्रीज्ड, which decreased the effective nuclear charge and made the size of these atoms to actually become larger. ठीक है, एंड ये सारे ऐसे ही हैं, these are all exceptions to our electronic configuration. ठीक है, आप नोटिस करोगे तो इन सब का केस एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का है, मतलब नॉट जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक कैडमियम मरकरी तो एक्चुअली नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, बट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है, इन सब के अंदर D10 सब शेल है, ठीक है। So that kind of increased the size. अच्छा, then notes में मैंने एक और चीज हाईलाइट कराई थी apart from this exception. मैंने exception का पार्ट नहीं हाईलाइट कराया था, but मैंने एक और चीज हाईलाइट कराई थी, which was ये जो rate of decrease है, ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअल हो जाता है, ठीक है। दिस ग्रेजुअल रेट ऑफ डिक्रीज का भी एक एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने। Gradual rate of decrease of size. This was something to do with the fact that Z effective gradually बढ़ रहा था, because the electron was and this is something in comparison. This is gradual rate of decrease in size as compared to P block, ठीक है, because P ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वहां पर भी साइज डिक्रीज होता है, डी ब्लॉक में भी लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, एज यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज हुआ, दिस इज समथिंग दैट इज understood or explained from the point of view of that outer और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों केस में, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के केस में, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, बट पी ब्लॉक में कैसा हो रहा था, दैट नया इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में ऐड हो रहा था, बट डी ब्लॉक में नया इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ऐड हो रहा था, एंड वो d ऑर्बिटल कौन सा था, इनर ऑर्बिटल था, मतलब n-1th शेल का था। जैसे आप इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जैसे आपने मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन देखा, तो 4s2 ये तो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड 3d5 तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए सक्सेसिवली वो d और लेकिन 3d में ऐड हुए n-1th शेल में, एंड दैट इज व्हाई द decrease in size was quite gradual, ठीक है। अच्छा, देन इसी में एक और सेट ऑफ एक्सेप्शंस आप लोगों को दिख रहा होगा डी ब्लॉक में, जो डाउन द ग्रुप वाला था। डाउन द ग्रुप वाला एक्सेप्शन क्या था? एनीवन हु वुड वांट टू हाईलाइट डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप वाला एक्सेप्शन क्या था? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट। सो एक्चुअली आप ऑब्जर्व करोगे कि 3D सीरीज से, ठीक है, ये 3D सीरीज था, 3D सीरीज से हम लोग जब 4D सीरीज में जाएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए था, ठीक है, साइज बढ़ गया, यूट्रिबियम का साइज ज्यादा आया,
ठीक है। देन 5D सीरीज का भी साइज बढ़ना चाहिए था, एंड लैंथेनम के केस में एक्चुअली साइज बड़ा हुआ ही आया। ठीक है, लैंथेनम के केस में साइज बड़ा हुआ ही आया, बट बाकी के एलिमेंट्स के केस में आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो कैसा हो रहा है, दैट साइज ऑफ 4D एंड 5D ऑलमोस्ट सेम ही आ गया। ठीक है, इनफैक्ट what we observed was that कई केसेस में थोड़ा सा साइज नीचे था, कई केसेस में थोड़ा सा साइज ऊपर था। ठीक है, बट दिस became an exception। ठीक है, that 4D का साइज ऑलमोस्ट became equal to the 5D के एलिमेंट्स का साइज। अब इसके पीछे का रीजन क्या बताया गया, दैट यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ये जो 5D सीरीज है, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर 72 से 80 के बीच वाली, ठीक है, इसके पहले एज यू कैन सी ये 4F के एलिमेंट्स पूरे भर रहे हैं। ठीक है, ऑल दीज 4F, ठीक है, लैंथेनम के बाद में ये 4F के पूरे एलिमेंट्स भरते हैं, एंड उसके बाद फिर हाफनियम का नंबर आता है। ठीक है, तो ये 4F के इलेक्ट्रॉन्स अगेन आर पुअर शील्डर्स, बिकॉज ऑफ विच effective nuclear charge dominated and shrunk the size of these atoms, and this is called as lanthanide contraction। ठीक है, so ये भी आपको एक सेट ऑफ एक्सेप्शंस याद रहना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा मत सोचना कि आपसे घुस घुस के डिटेल में पूछा जाएगा दैट हर एक के केस में कंपेयर करो, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा वेरिएशंस रहता है साइज का। मतलब आप देखोगे कि कहीं पर रेड वाली लाइन थोड़ी सी नीचे है, तो कहीं पर रेड वाली लाइन थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, कहीं पर ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो दैट इज नॉट समथिंग विच उसकी निटिग्रिटीज में जा जाके आपसे पूछेंगे। ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर, एक एग्जांपल जरूर आप ध्यान रखें ना, लैंथेनम, यूट्रिबियम एंड स्कैंडियम का, कि इनके केस में ये मैंने नोट्स में भी लिखवाया है कि एक्सेप्शन नहीं रहता है, बिकॉज लैंथेनम आप देखोगे लैंथेनम का कैसा है, लैंथेनम के पहले 4F इलेक्ट्रॉन्स भर ही नहीं रहे। ठीक है, लैंथेनम के पहले 4F इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो रहे, तो इट काइंड ऑफ escapes that factor of lanthanide contraction, and as a result उसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, बट बाकी केसेस में you have slight changes in the trend। ठीक है, all right, so ये आपको atomic size। सर, हाँ बोलो सर, अगर 6D का ड्रॉ करेंगे तो वो भी इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। अब देखो, आपका पॉइंट एकदम सही है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, अब एक्सेप्शन प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शन प्रिडिक्ट करने में द पॉइंट इज, मैं आपको बोल दूंगा कि हाँ, मतलब एक्चुअली देयर शुड बी, बिकॉज 6D के पहले 5F फिल हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर 4F फिल हो रहा है, तो 6D के पहले 5F फिल हो रहा है। अब द थिंग इज कि ये जो एलिमेंट्स हैं ना 6D वाले, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनके ऊपर डिस्कशन एक्चुअली करा ही नहीं जाता है, बिकॉज इनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आर वेरी डिफिकल्ट। आप ऐसे देखो ना कि आप इस एटम को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, बट ये एटम कंटिन्यूअसली पार्टिकल्स एमिट करता जा रहा है, तो आपकी ऑब्जर्वेशंस इंटरफेयर होती जाएंगी, आपकी ऑब्जर्वेशंस सही से आ ही नहीं पा रही हैं, because these particles, they are going to mess the
instruments or the techniques that we are going to use to do the measurements. तो आप notice करोगे कि इन radioactive elements का data आपको मिलता नहीं है, मतलब बहुत selectively कहीं पर मिल जाएगा, बट उसकी भी रिलायबिलिटी इतनी नहीं रहती है. तो जनरली आप जो टेक्स्ट बुक्स रेफर करते हो, द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, दे डू नॉट वेंचर इनटू दिस रीजन. ठीक है, एंड इससे आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा. बट सर हमें पता है ना कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होता है ना. हाँ, डेफिनेटली. मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको कि बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए. ठीक है, ओके सर. बट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में इन जनरल आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का ऐसा डिस्कशन हम लोग अभी के लिए अवॉइड करते हैं. वी डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. इट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट्स द सिचुएशन. हमारे पास अभी समझने के लिए और फोकस करने के लिए और चीजें हैं, तो हम काइंड ऑफ डेप्थ कवर करना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि बस डेप्थ में ही जाते जा रहे हैं, हमें ब्रेड्थ भी कवर करना है. ठीक है, ओके सर. all right. Then after understanding the atomic sizes, ठीक है, हम लोगों ने आयोनिक साइज का भी डिस्कशन किया. ठीक है, सो आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा आयोनिक साइज के केस में किस तरीके से कैटायंस और एनायंस का रेडियस का डिस्कशन होता है. ठीक है, तो इसमें कैटायन का साइज कम रहता है एज कंपेयर टू द एटम, अनायन का साइज ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द एटम. एंड देन हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस यू शुड से, इनके केस में भी डिस्कस किया साइज का कंपैरिजन कैसा रहेगा. एंड व्हाट वी अंडरस्टूड एंड फाउंड आउट वाज दैट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ठीक है, हमें फोकस करना चाहिए Z के ऊपर, क्योंकि अगर Z ज्यादा होगा तो Z इफेक्टिव ज्यादा होगा एंड एज अ रिजल्ट साइज श्रिंक कर जाएगा. तो इसमें हमें यही समझ में आया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बीच में कंपेयर करने पर वी लुक एट द Z इफेक्टिव. ठीक है, और यू कैन से Z, जैसे ये N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, इनके बीच में जैसे जैसे हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं Z बढ़ता जा रहा है तो साइज कम होता जाएगा. ठीक है, अच्छा, बीच में नोबल गैस मत डाल देना. ठीक है, नोबल गैस के लिए वॉन डेर वाल्स रेडियस रिपोर्ट होता है. सो इट इज समथिंग व्हिच डजंट रियली फिट द ट्रेंड हियर. अच्छा, इसमें फिर मैंने दो एक्सेप्शंस आपको एक्चुअली आई डोंट थिंक सो वीडियो लेक्चर्स में हाईलाइट करे थे, क्योंकि ये बाद में हाईलाइट करे जाते हैं, बट मैं अभी आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है, इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना. आई एम नॉट श्योर कि वीडियो लेक्चर्स में ये मैंने उस टाइम पे हाईलाइट करे थे कि नहीं करे थे. इसमें दो एक्सेप्शंस का ध्यान देना. ठीक है, सॉरी, एक देना H माइनस एंड F माइनस आयन के बीच में. ठीक है, हाइड्राइड आयन एंड फ्लोराइड आयन. ठीक है, इसमें व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट H माइनस का साइज, हाइड्राइड आयन का साइज बड़ा होता है. ठीक है, F माइनस इज द स्मॉलेस्ट anion, नॉट H माइनस. अब इसके पीछे का जस्टिफिकेशन जो प्रोवाइड करा जाता है वो इस तरीके से प्रोवाइड करा जाता है दैट हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन था एंड जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो उसको इतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है. मतलब दैट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, it is something which is
क्वाइट बिग, मतलब यहाँ पर आप रेशियो ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करोगे तो 1:2, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो 9:10. So that is something which is highlighted as an important reason that हाइड्रोजन और हाइड्राइड आयन का साइज काफी बड़ा आ जाता है. ठीक है. सिमिलरली एक और एक्सेप्शन जो आप ध्यान रखोगे इज Li प्लस एंड Mg2+ के बीच में. ठीक है. यू माइट एक्सपेक्ट दैट Li प्लस का साइज छोटा आएगा एज कंपेयर टू Mg2+, बट आप NCERT रेफर करोगे, ठीक है, तो उसमें यू विल फाइंड दैट Mg2+ का साइज इज एक्चुअली स्मॉलर देन Li+ का साइज. ठीक है. इस पे एक्चुअली जेई मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है पहले. ठीक है. सो ये आप एक्सेप्शन हाईलाइट करके रखना. ठीक है. इसमें भी अगेन इट इज समथिंग व्हिच इज डेडिकेटेड टू प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. ठीक है. इतने अच्छे रीजंस नहीं है. द रीजंस आई विल अपफ्रंट एडमिट फ्रॉम माय साइड दैट द रीजंस आर नॉट quite convincing, not quite in the flow of things. ठीक है. अचानक से बीच में से ऐसे कुछ रेशियो के बारे में बात कर दिया है. ठीक है. बट आप नोटिस करोगे तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में भी आप जैसे जेडी ली भी पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसा ही एक्सेप्शन का इसका ये एक्सेप्शन हाईलाइट करा हुआ है और उसके पीछे का ये रीजन डाल दिया है. ठीक है. इट काइंड ऑफ डजंट फिट इनटू द फ्लो. ये हम लोग कैसे समझना चाह रहे थे, बस अचानक से ये कर दिया. एंड वो एक्चुअली फ्लो में फिट भी नहीं करेगा बिकॉज नाइदर दीज एलिमेंट्स आर इन द सेम ग्रुप नॉर दीज एलिमेंट्स आर इन द सेम पीरियड. ठीक है. बट ये नोटेबल एक्सेप्शंस है. ठीक है. इसलिए हम लोग इनको ध्यान रखेंगे. ठीक है. ऑल राइट. तो ये एटॉमिक साइज के ऊपर डिस्कशन हुआ था. एंड देन इसके बाद में आयोनिक साइज के डिस्कशन के बाद में the property that got discussed was ionization energy, or also called as ionization enthalpy, delta HIE. ठीक है. अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड टू दिस, आप लोगों को कुछ डाउट है इस पार्ट में, कॉन्सेप्चुअल डाउट, तो मुझसे पूछो. विल डिस्कस. सर वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाले रेशियो का क्या रिलेशन था, वो एक बार वापस बता दीजिए. वही मैं बता रहा था. इट इज नॉट दैट कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन. व्हाट इट इज सेइंग इज दैट इन केस ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है, एक प्रोटॉन और उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, so it is not something which is able to kind of maintain a good grip on them, and as a result the size is quite large as compared to what it would have been expected. But in case of fluoride ions, अभी यहाँ पर कैसा है, 9 प्रोटॉन्स के अराउंड 9 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया. ठीक है. तो 9 प्रोटॉन्स के लिए 10वें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना was still quite manageable. Easier come. Okay. हाँ. Okay. So that is something of a reason that is given. The fact is कि आप एक्सेप्शन याद रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ऑल राइट. सो आयोनाइजेशन एनर्जी की तरफ मूव करते हैं. नाउ आयोनाइजेशन एनर्जी इज अगेन समथिंग जिसके लिए सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन समझाया जाएगा. ठीक है.
आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, इसका डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस होते हैं। ठीक है, so definition goes in the standard manner that it is the minimum energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom. ठीक है, एंड इसका representation भी इस तरीके से ही करा जाता है। ठीक है, गैशियस स्टेट में होना जरूरी है, आइसोलेटेड गैशियस एटम होना जरूरी है, बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी इंटरफेरेंस विद और एनी इंटरेक्शन विद अदर एटम्स टू प्ले अ रोल। ठीक है, अच्छा, then this is called as delta H IE1, first ionization enthalpy of M। ठीक है, अगर हम इसमें से M प्लस आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ M, or you can say the first ionization enthalpy of M plus। ठीक है, एंड सिमिलरली M2 प्लस से भी मैं अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं, so it will be delta H IE3 of M, third ionization energy of M, or you can say the first ionization energy of M2 plus, or third second ionization energy of M plus, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, समथिंग रिटन लाइक दिस, इन तीनों का एडिशन की, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। ठीक है, सो दिस इज नॉट कॉल्ड एज IE3, this is IE1 plus IE2 plus IE3। ठीक है, अच्छा, ये वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, डेल्टा H IE आर ऑलवेज, ठीक है, डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स is always positive। why? because इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड था, तो उसको निकालने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इनका यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और यू कैन से किलो जूल पर मोल में रिपोर्ट करते हैं। इनके बीच का इंटर कन्वर्जन आता है क्या आपको? हाउ मच विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम? 96.4। कितना? 96.4। 96.4 के आसपास किलो जूल पर मोल में। हाँ, मतलब ठीक है, आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसको? एक्चुअली आप यहाँ पे नोटिस करना, ईवी को आप क्या लिख दोगे? ईवी को लिख दोगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, एंड जूल्स को किलो जूल्स में कन्वर्ट कर दोगे बाय राइटिंग जूल एज 10 की पावर -3 किलो जूल। एंड एक एटम कितना होता है? 1 atom is 1 upon Na moles, so 6.022 into 10 की पावर 23, 1 upon 6.022 into 10 की पावर 23 मोल आ जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई कर दोगे, ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो यू विल गेट द आंसर इज अराउंड 96.4 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इंटर कन्वर्जन आपको कैलकुलेशंस में कई बार काम आ सकता है।
ओके अच्छा, देन एक और पॉइंट इसमें कैसा था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो तो जो बचा हुआ एटम है वो तो पॉजिटिव होता जा रहा है ना, मतलब इट विल नाउ अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर। ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजेस। ओके, देन इसमें फैक्टर्स आप लोगों ने नोटिस करे थे, व्हाट वर द की फैक्टर्स। सो इसमें जब आप लोगों ने फैक्टर्स नोटिस करे होंगे तो उसमें I had spoken about two factors which were primary. ठीक है, primary factors में one was the size and the other was Z effective. Just a second guys, इस कौवे को भगाना पड़ेगा, ये हर बार डिश पे आके बैठता है। Give me 1 second. All right, so primary factors were size and Z effective, and secondary factors में दो फैक्टर्स यहाँ पे काउंट कराए थे। ठीक है, एक तो कॉन्फ़िगरेशन था, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड द अदर वाज पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो जो मेजर ट्रेंड्स होते हैं वो तो प्राइमरी फैक्टर्स से समझ में आते हैं। ठीक है, मेजर फैक्टर्स जो थे वो प्राइमरी ट्रेंड से समझ में आते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा न्यूक्लियस से एंड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। टॉप टू डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, उसका रिमूवल आसान हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन कम्स फ्रॉम जेड इफेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, मोटा मोटा ट्रेंड्स ऐसे ही रहते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन other factors that also play sometimes a role. ठीक है, and इसमें an important role that is played in many examples is of the configuration and penetration power. तो इनको हम secondary factors की तरह काउंट करने लग गए, and these secondary factors का जो रोल रहता है, ठीक है, वो मैंने आपको एक नोट के फॉर्म में भी लिखवाया था, that this is something which plays an important role between adjacent elements. ठीक है, एंड इस इन दो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने जो एग्जाम्पल यूज करा था, इट वाज थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने का, IE1 ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो कैसा था इसमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नियॉन भी ले लिया था। तो इनको जब हम कंपेयर कर रहे थे तो लेफ्ट टू राइट कैसा एक्सपेक्टेशन था, जनरली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, बट उसमें दो केसेस या दो एग्जांपल्स जहां पर ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिख रहा था, वाज दिस बेरिलियम, बोरॉन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन।
right? Anyone would want to explain the reason behind them? What was the reason between beryllium and boron का change in penetration power? penetration power? राइट, सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे दैट बेरिलियम से बोरॉन के बीच का जो डिफरेंस आया कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें द एडेड इलेक्ट्रॉन बोरॉन वाज इन 2p, ठीक है, एंड 2p एंड 2s के बीच में व्हाट वी ऑब्जर्व्ड वाज दैट 2p का इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू 2s का, बिकॉज 2p के इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर वाज लेसर, ठीक है। एस इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इट स्पेंड्स मोर टाइम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो इसके लिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा निकला, ठीक है। बट ऐसा नहीं था कि दिस फैक्टर प्लेड अ रोल इन अ वेरी डोमिनेटिंग मैनर, ठीक है। तो अगर हम कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं तो वो फिर वापस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो पेनिट्रेशन पावर का रीजन था वो सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट के बीच में ही हमें एक रोल प्ले करता हुआ दिखता है, ठीक है। देन नाइट्रोजन के केस में और ऑक्सीजन के केस में भी एक फ्लक्चुएशन इन ट्रेंड आया, एंड उसका एक्सप्लेनेशन कौन देना चाहेगा? Anyone would want to explain that why this change? Sir. हाँ. Sir, half-filled p subshell of N. Right. So it was the half-filled subshell that played an important role कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में से p ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं, p सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकलने हैं, बट नाइट्रोजन में there is half-filled configuration which makes it slightly more stable and slightly more difficult to remove the electron as compared from oxygen, ठीक है। बट फ्लोरीन से कंपेयर करने पर वापस से ट्रेंड नॉर्मल आ गया, क्योंकि इतना डोमिनेटिंग रोल नहीं था उसका। सो फ्लोरीन के केस में अगेन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट उसका नाइट्रोजन से ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है। एंड नियॉन का ऑफ कोर्स इन सबसे ज्यादा आएगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट हैज अ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सो एक्चुअल ट्रेंड यहाँ पर कैसा था? लिथियम, then boron, then beryllium, then carbon, then oxygen, then nitrogen, then fluorine, then neon. So ये IE1 का ट्रेंड मिला, ठीक है। Now अब ऐसा भी हो सकता है that sometimes you might say कि अरे ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए रीजन बना दिया गया। So ऐसा नहीं था, actually there were many other cases also, many other examples also which got explained because of this reasoning. That is why this reason became something of a secondary factor, ठीक है। तो इसके लिए और भी examples थे जहां पर ये similar observation was explained by these set of reasons, right? So कौन से cases थे वो भी हम लोगों ने exceptions में highlight करे होंगे। And before we went into the details of those exceptions, तो यहाँ पर ही second ionization energy के केस में भी इस फैक्टर का डोमिनेंस देख लिया था, ठीक है। IE2 का ऑर्डर बताओ इन एलिमेंट्स का, इफ यू रिमेम्बर फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स, व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ IE2? कहाँ पर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा? सो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इस केस में अब एक्सेप्शन देखने को मिलेगा बोरॉन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बीच में, और लिथियम एंड में चला गया। हाँ, और लिथियम के बीच में भी रहेगा। लिथियम का एक्चुअली पूरा का पूरा
शेल निकल जाएगा तो वो एकदम काफी बड़ा जंप हो जाएगा उसके आयनाइजेशन एनर्जी में। ठीक है, पूरा का पूरा आउटर शेल ही गायब हो गया ना, 2s पूरा गायब हो गया, तो 1s से अब इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी ज्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, सो इसमें what we observed was that this was the trend of IE2, that beryllium, फिर उसके बाद कार्बन, एंड फिर कार्बन के बाद बोरॉन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन, एंड फ्लोरीन के बाद में ऑक्सीजन, फिर नियॉन एंड Li। ठीक है, दिस वाज एक्चुअली द ट्रेंड ऑफ IE2। ठीक है, अच्छा, देन इसमें एक्सेप्शंस का डिस्कशन होता है। एक्सेप्शंस को भी जैसे पहले करा था वैसे ही ब्रेक कर देते हैं। S एंड P ब्लॉक का एक साथ करते हैं, फिर D ब्लॉक का अलग से करेंगे। नाउ विद इन S एंड P ब्लॉक अक्रॉस पीरियड एंड डाउन ग्रुप दोनों डिस्कशन करेंगे। सिमिलरली D ब्लॉक में भी अक्रॉस पीरियड एंड डाउन ग्रुप डिस्कशन करेंगे। S एंड P ब्लॉक में अक्रॉस पीरियड कैसा रहेगा? कौन सा एक्सेप्शंस रहेंगे बताओ? S एंड P ब्लॉक अक्रॉस पीरियड। नोट्स देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख के बताओ। चाहिए तो हम लोग बुकलेट में से आई का डेटा वाला टेबल भी देख लेते हैं। राइट, सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, सिलेक्ट का टूल नहीं है। मैं यहीं पे लाके इसको चिपका देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस टेबल को? सो नोटिस करना, बेरिलियम बोरॉन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए था, बट बेरिलियम बोरॉन में क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी। सर कैन यू प्लीज रिपीट? में डिस्कनेक्टेड हो गया था। नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी, थोड़ी देर में, मैं जस्ट अभी स्टार्ट किया था, मतलब आई जस्ट कॉपीड दिस डायग्राम। किया कुछ? हाँ, डायग्राम कॉपी करने के बाद कुछ एक्सप्लेन किया? नहीं, बस मैंने ये एक्सेप्शन बोला था कि हम लोग एक्सेप्शन हाईलाइट करेंगे, एंड उसमें हम लोग ऐसे एस एंड पी ब्लॉक के अलग से एंड डी ब्लॉक के अलग से करेंगे। तो उसमें हम एस एंड पी ब्लॉक के अक्रॉस पीरियड जा रहे थे,
ठीक है, Okay. मैं आपको बता रहा था दैट बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड गैलियम। ठीक है, इनके केस में आप देख रहे हो ये एक्सेप्शंस आ गए दैट लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो गया। ठीक है, बट रहा सवाल स्ट्रोंशियम और इंडियम का। ठीक है, स्ट्रोंशियम एंड इंडियम या बेरियम एंड थैलियम, इसके बीच में एक्सेप्शन देखने को नहीं मिला। ठीक है, इनमें नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो गया। सो ऐसा क्यों हुआ होगा? मे बी पेनिट्रेशन पावर का जो रीजन था, ठीक है, बिटवीन बेरिलियम बोरॉन, that played a dominating role in case of magnesium, aluminum and calcium gallium also. ठीक है, बट उनके नीचे हम जैसे जैसे जाते जा रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है? फेड हो रहा होगा। ठीक है, उसका इफेक्ट धीरे धीरे फेड होता जा रहा है एंड एज ए रिजल्ट स्ट्रोंशियम, इंडियम और बेरियम, थैलियम के बीच में खास देखने को नहीं मिला। ठीक है, सिमिलरली आप ऑब्जर्व करोगे तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में अक्रॉस अ पीरियड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक्सेप्शन था, वही एक्सेप्शन फॉस्फोरस एंड सल्फर के बीच में भी कैरी हुआ। ठीक है, एंड आर्सेनिक एंड सेलेनियम के बीच में भी कैरी हुआ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी कम हुआ बढ़ने की जगह। बट इनके नीचे अब आप देखोगे SB एंड T, SB स्टैंड्स फॉर एंटीमनी, एंटीमनी एंड T स्टैंड्स फॉर टेलुरियम। तो इनके बीच में एंड बिस्मथ एंड पोलोनियम, इनके बीच में लेफ्ट टू राइट नॉर्मल ट्रेंड ही दिख रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है। तो मे बी दैट हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन प्लेड अ रोल, बट इट प्लेड अ डोमिनेटिंग रोल इन केस ऑफ these elements only. It didn't play a dominating role so much down the group. ठीक है, उसका इफेक्ट शायद फेड ऑफ हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये थे S&P ब्लॉक के डाउन अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो ये एक्सेप्शंस आपको देखने थे। ठीक है, अच्छा, अब यही टेबल को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अब S&P ब्लॉक में ही चलते हैं वापस से डाउन द ग्रुप। ठीक है, सो यहां पर लेट मी राइट S&P ब्लॉक डाउन द ग्रुप। सो S&P ब्लॉक में, S ब्लॉक में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आप डाउन द ग्रुप जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होता जा रहा है। ठीक है, फ्रांशियम एंड रेडियम को मत नोटिस करना, दीज आर अगेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो इवन इन केस अगर आपसे कोई पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा है ना कि आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो हाईएस्ट आप हीलियम का बताओगे और लोएस्ट आप सीजियम का ही बताना। ठीक है, डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ F block elements or these radioactive elements. ठीक है, सो S&P ब्लॉक में आप देखोगे डाउन द ग्रुप टॉप टू डाउन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। इवन इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स द आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, आप P ब्लॉक में आ जाओ। P ब्लॉक में आप नोटिस करोगे नोबल गैसेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉप टू डाउन जा रहे हैं।
हैलोजेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉप टू डाउन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। सेम गोज इन केस ऑफ कैल्कोजेंस, सेम गोज इन केस ऑफ निक्टोजेंस। ठीक है, टॉप टू डाउन जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। इन केस ऑफ कार्बन फैमिली ऑल्सो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, टॉप टू डाउन जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ही कर रहा है, एज यू कैन लुक फ्रॉम द डेटा। दिस ग्रुप ऑफ boron family is something which is quite notorious, as you can see in terms of going down the group. ठीक है, काफी abnormal सा ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट द ट्रेंड दैट यू सी फ्रॉम द डेटा, आप नोटिस करना यहाँ पर कैसा दिख रहा है, बोरॉन का सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंड उसके बाद एक्चुअली थैलियम का नंबर आ गया। ठीक है, देन फिर यू हैव गैलियम एंड एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट सेम, एंड देन इंडियम उसके नीचे। ठीक है, तो इसमें अब आप नोटिस करना, गैलियम एल्यूमिनियम का एक अलग रीजन हाईलाइट करा जाता है ऑफ ब्रेकिंग द ट्रेंड, दैट इज पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स गैलियम के अंदर। ठीक है, साइज इनका सिमिलर था तो इनका आयनाइजेशन एनर्जी भी काफी सिमिलर ही आया। थैलियम के लिए भी एक्सेप्शन हाईलाइट करा जाता है, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थैलियम के पीछे 4f इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं, जिनकी वजह से पुअर शील्डिंग की वजह से इसका आयनाइजेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, बट दिस इज समथिंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, सेट ऑफ एक्सेप्शंस इन P block डाउन द ग्रुप वाला। ये समझ में आया? सर कार्बन ग्रुप फुल और लेड एक्सेप्शन नहीं है। कार्बन में हाँ हाँ एक्चुअली ठीक है, मतलब दैट इज ऑल्सो SN and PB। ठीक है, यहाँ पे भी एक्चुअली यू कैन से that same poor shielding of 4f electrons did play a role between these two. PB के पहले भी 4f electrons थे जिनका डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखा यहाँ पर, बट नेक्स्ट केस में बिस्मथ और एंटीमनी के केस में ये नहीं दिखा। ठीक है, अच्छा फिर डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस भी देखते हैं, बट मुझे एक बार बताना, शायद लेक्चर नंबर 6 के एंड में कहाँ तक थे आप लोग? लेक्चर नंबर 6 में डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस भी कवर हो गए थे ना? यस सर, वो एप्लीकेशंस भी किया, आयनाइजेशन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस अगेन। ठीक है, अब इसमें हम लोग डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस हाईलाइट कर लेते हैं, एंड इसमें व्हाट आई वुड रेकमेंड टू एक्चुअली फर्स्ट गो इज डाउन द ग्रुप ओनली। ठीक है, डी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप ही चलते हैं। अक्रॉस द पीरियड इसमें बहुत ही वियर्ड ट्रेंड्स हैं। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड आप नोटिस करोगे अगर, तो स्कैंडिनियम का कम है, फिर टाइटेनियम का बढ़ गया, फिर वेनेडियम का थोड़ा कम हो गया, फिर क्रोमियम का थोड़ा सा बढ़ गया, फिर मैंगनीज का और बढ़ गया, आयरन का भी बढ़ गया, देन कोबाल्ट का स्लाइटली कम हुआ, निकल का और कम हुआ, देन कॉपर का बढ़ गया, एंड जिंक का फिर बहुत बढ़ गया। तो एज यू कैन सी across a period the trends are pretty difficult to understand। मतलब आप ये 3D सीरीज का मैंने बात करा, आप 4D सीरीज का बात करोगे तो और रैंडम ही होता जाता है ट्रेंड। तो इसके लिए डी ब्लॉक में अक्रॉस पीरियड हम लोग
ट्रेंड्स का डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। अक्रॉस पीरियड ट्रेंड में नहीं जाते हैं। डाउन द ग्रुप फिर भी हम लोग ऑब्जर्वेशन देखना चाहेंगे। तो डाउन द ग्रुप आप नोटिस करोगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो स्कैंडियम, यूट्रेबियम एंड लैंथेनम में तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि लैंथेनम में कोई 4f इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, ठीक है। बट ये जो बचे हुए हैं इनमें what you see as an exception is that as we go from 4D 3D series to 4D series, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी टिपिकली कम ही हो रहा है, ठीक है। एक दो एक्सेप्शंस छोड़ दो, आयनाइजेशन एनर्जी टिपिकली कम ही हो रहा है। बट 4D से 5D जब जा रहे हैं, ठीक है, 4D से 5D जब जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोटिसेबल एस्पेक्ट है कि 4D से 5D जब आप जा रहे हो तो सब केस में आयनाइजेशन एनर्जी एकदम significantly increase हो गया। So this is something to do with the poor shielding of the 4f electrons. ठीक है। एंड इसमें अगर आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल को डिटेल में ऑब्जर्व करना है तो आई वुड रेकमेंड कि आप डाउन द ग्रुप में ये तीन एग्जाम्पल्स एज इन ये तीन ग्रुप्स को डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फोकस दो, ठीक है। इसमें आप नोटिस करोगे तो कैसा हो रहा है, प्लैटिनम का आयनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली निकल से भी ज्यादा हो गया, ठीक है। प्लैटिनम मैं एक्चुअली जिंक से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है। लेट मी राइट देम हियर। मर्करी का आयनाइजेशन एनर्जी जिंक से भी ज्यादा हो गया। जिंक एंड कैडमियम तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही Ag एज एन आप कॉपर और Ag का देखोगे, कॉपर और सिल्वर का, कॉपर और सिल्वर नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, बट गोल्ड का उससे ज्यादा हो गया, ठीक है। गोल्ड का कॉपर से भी ज्यादा आ गया। एंड निकल एंड पैलेडियम में तो एक्चुअली एक फ्लक्चुएशन यहाँ पे भी आ गया कि पैलेडियम का निकल से ज्यादा हो गया। पैलेडियम का निकल से ज्यादा हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हो? fully filled electron 4d10 palladium में। हाँ, पैलेडियम में एक्चुअली मतलब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे पैलेडियम का तो वो इंटरेस्टिंग वो है कॉन्फ़िगरेशन। इट वाज सपोज टू बी 5s2 एंड 4d8, बट देन दो इलेक्ट्रॉन्स डी में चले गए, तो इसके अंदर एक्चुअली s का सबशेल ही नहीं है, ठीक है। 5s का सीधे 4d में इलेक्ट्रॉन है, तो ये आप डेफिनेटली ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इन केसेस में ये जो हायर एक्सेप्शंस हैं इनका तो खैर मैंने आपको बताया ही सही कि 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग, ठीक है, विच इज ऑल्सो व्हाट वी कंट्रीब्यूट और कॉल एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ये डेफिनेटली ध्यान रखना, ठीक है।
Then D block में across period, as I said, trends are quite haywire, so don't get much into the details of D block के across period trends. ठीक है, मैंने आई थिंक बस ये कॉपर, जिंक, सिल्वर, कैडमियम और गोल्ड, मर्करी, इनका जरूर हाईलाइट कराया होगा. ठीक है, मैं इनफैक्ट आपको बस डी ब्लॉक में मैं वापस इसको कॉपी करने के लिए बोल देता हूँ और बता देता हूँ कि क्या है जिसको आप थोड़ा सा और हाईलाइट करके देख सकते हो. डी ब्लॉक में अक्रॉस पीरियड, ठीक है, इसमें नोटिस करना तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ठीक है, ये केसेस आप ध्यान रख लेना. ठीक है, इसमें मैंने ये भी हाईलाइट कर दिए दैट ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना डी से हम जब पी ब्लॉक में जा रहे हैं, ठीक है, तो एक सडन ड्रॉप हो रहा है, सिग्निफिकेंटली लार्ज ड्रॉप हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का, जिंक से गैलियम, कैडमियम से इंडियम एंड मर्करी से थैलियम में. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था. ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्करी के बीच में बेसिकली ns इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे थे. ठीक है, ये ns2 था यहाँ पर, एंड यहाँ पर np से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. ठीक है, एंड पैलेडियम एंड मर्करी के बीच का मैंने आपको बताया ही सही कि यहाँ पर द अंडरलाइंग रीजन वाज दैट पैलेडियम के केस में 4d10 कॉन्फ़िगरेशन था. ठीक है, एंड यहाँ पर कॉपर एंड जिंक या सिल्वर एंड कैडमियम एंड मर्करी एंड गोल्ड के बीच में जो एक्सेप्शन है वो ऐसा है दैट यहाँ पर साइज भले इंक्रीज हो रहा था. ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया था ना, कॉपर एंड जिंक में साइज इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, सो इट इज समहाउ नॉट इन लाइन विद द साइज ट्रेंड. ठीक है, तो ये नोटेबल एक्सेप्शन था. ठीक है, देन एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी में आप लोगों ने एक ही एप्लीकेशन देखा होगा एक्चुअली, एंड खास कुछ एप्लीकेशंस का ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसमें significant jump in successive ionization energy highlights the fact that an entire shell got removed. ठीक है, so those were the key conceptual points. इनमें आपको कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो, otherwise we'll move towards discussing booklet के doubts. ठीक है, मैं इसका PDF भी आपको शेयर कर दूंगा लास्ट टाइम के जैसे. बुकलेट डाउट्स डिस्कस कर लें अभी. ऑल राइट, ठीक है, सो बुकलेट में अभी तक तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे. ठीक है, आज मैं थोड़ा सा और होमवर्क दे दूंगा बुकलेट में से. सो आई थिंक FBO सेक्शन दिया था मैंने एंड गेट इक्विप टू मेंस दिया था. ठीक है, इनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर ही लिए थे, बट बता दो FBO में कौन से डाउट्स हैं.
एक बार मुझे बता दो तो मैं क्विकली उनको डिस्कस कर लूंगा। 17, 17 ओके। 31, कौन सा? 31, 31 ओके। Sir, 25. 25 ओके। 35, 35 ठीक है। इसके अलावा FBO में अभी पहले एक बार FBO करते हैं, फिर मैं उस पे आऊंगा, गेट इक्विप टू मेंस वाला। ठीक है, सो लेट मी ओपन द बुकलेट। ओके, बुकलेट में FBO के सेक्शन पे आते हैं। कौन सा बोला था पहले? 17th। माय बैड। हाँ 17 कहाँ गया? ओके, सो 17 में कैसा है दैट आपको बोला जा रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, तो इसमें किसका Z ज्यादा होगा? पोटेशियम का, तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, है ना? ये अभी जस्ट आयनिक रेडियस में मैंने बताया आपको। ओके, देन 25th में, हाँ सो इसमें आप नोटिस करना ना, आपको एक एक करके समझना पड़ेगा। 25th में Li प्लस एंड बेरिलियम 2+ में, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना 25th में Li प्लस एंड बेरिलियम 2+ में बेरिलियम 2+ छोटा है, Na प्लस एंड Mg 2+ में Mg 2+ छोटा है, ठीक है। Li प्लस एंड Na प्लस में यू नो दैट Na प्लस बड़ा है, एंड बेरिलियम 2+ एंड Mg 2+ में Mg 2+ बड़ा है, ठीक है। तो इससे आप डिसाइफर कर सकते हो दैट बेरिलियम 2+ is the smallest and Na plus is the largest. सर आपने एल्यूमिनियम 3+ तो लिया नहीं? एल्यूमिनियम भी है क्या उसमें? अच्छा, ओहो सॉरी, इसमें पोटेशियम और एल्यूमिनियम है, माय बैड। मैंने सो K+, माय बैड यार, मैं एक बार लिख लेता हूँ कि कौन से आयंस थे। Li प्लस है, बेरिलियम 2+ है, देन Mg पोटेशियम एल्यूमिनियम, Mg 2+ है, K+ है एंड एल्यूमिनियम 3+ है, ठीक है। सो इसमें अब आप नोटिस करो क्या क्या ट्रेंड्स हैं जो कि फॉर श्योर आपको बताएं दैट Li प्लस एंड बेरिलियम 2+ में बेरिलियम 2+ छोटा रहेगा, बेरिलियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ में भी बेरिलियम 2+ छोटा रहेगा, देन Li प्लस एंड K+ में K+ बड़ा रहेगा, एंड मैग्नीशियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+ में, ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम 3+ छोटा रहेगा, नहीं हाँ एल्यूमिनियम 3+ छोटा रहेगा। तो ये देखो, ये ग्रुप हो गया, ये पीरियड हो गया, एक्चुअली ठीक है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही हो गए। तो इससे आप डिसाइफर कर सकते हो ना दैट आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। सो इसमें
K प्लस एक्चुअली आपका थर्ड ग्रुप का है, सॉरी फोर्थ पीरियड का, आप कह सकते हो फोर्थ पीरियड का है, तो इसका आपका लार्जेस्ट साइज रहेगा। एंड ये दोनों आपके फर्स्ट पीरियड के हैं, ठीक है, बट फर्स्ट पीरियड में भी लिथियम प्लस एंड बेरिलियम 2 प्लस फर्स्ट पीरियड के हैं, बट उसमें भी बेरिलियम 2 प्लस का स्मॉलेस्ट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ब्रेक कर करके पार्ट्स में ही इस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। देन 31st में नोटिस करना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, एंड इसमें अपन ने नोटिस किया ना एक्सेप्शन का केस है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के केस में I1, ये 31 में हम लोगों ने I1 का ट्रेंड देखा, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में एक्चुअली मैग्नीशियम का ज्यादा आया ना बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन पावर रीजन, ठीक है। बट I2 में देखूंगा तो I2 में ट्रेंड नॉर्मल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर का रीजन नहीं बचा है, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। देन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर आपको कंपेयर करना रहेगा तो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल Mg का तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, I3 of Mg will be much bigger than that of aluminium. Why? Because यहाँ पर lost मतलब इसके पहले वाले में पूरा शेल चला गया, ठीक है, तो इसमें अभी lost shell in previous ionization, ठीक है, तो इसमें तो एकदम बड़ा जंप आएगा, ठीक है। देन आपने पूछा है 35th में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वही होगा ना जिसका Z सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबका सेम है, ठीक है। 35th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इसका मतलब Z इफेक्टिव इज ग्रेटर फॉर ग्रेटर Z, क्योंकि सिग्मा सबका सेम रहेगा, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, तो बस इनमें जिसका Z सबसे ज्यादा है उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। ओके, देन गेट इक्विप टू मेंस वाले पार्ट में बता दो कौन से डाउट थे। एक तो तुमने बताए थे 27 एंड 43, ये पूछा था ना दीपांकर, 27 एंड 43, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट है गेट इक्विप्ड वाले पार्ट में? ओके, 11 एंड 12, ये 27 43 मैंने दिए थे क्या होमवर्क में? ओके, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन हैं? इफ नॉट तो फिर हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गेट इक्विप टू मेन में 11 एंड 12, हाँ, सो 11 में एक्चुअली दिस इज द पार्ट दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग। ये 11th का जो आप ए स्टेटमेंट है, ठीक है, दिस इज समथिंग जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था जब हम साइज का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर। सो ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज आया था, इसके पीछे का रीजन मैंने यही बताया था आपको, दैट प्रोटॉन न्यूक्लियस में ऐड हो रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है
वो बैलेंस शेल में ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। 4s में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो रहा है, 3d में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल में n-1th शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो लेफ्ट टू राइट सक्सेसिव चेंज आना चाहिए था in Z effective, that increase isn't as fast or isn't as large as in case of P block. यहाँ पर it is quite gradual, and because of that the decrease in size is also quite gradual. And this same observation is something which is also in the case of lanthanide series. The rate of decrease, अब ये जो मैंने कंपेयर किया था वो डी एंड पी ब्लॉक के बीच में कंपेयर किया था। ये जो बी ऑप्शन है ये मुझे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है बिटवीन एफ एंड डी ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है। एफ ब्लॉक में भी आप देखो ना, एफ ब्लॉक में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो अभी भी NS2 ही रहेगा, दैट विल बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बट जो एडेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 4f में फिल होता जा रहा है, ठीक है। तो वो n-2th शेल में, ठीक है, n-2th शेल में और अंदरूनी शेल में फिल हो रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसकी वजह से इंक्रीज इन Z इफेक्टिव और ग्रेजुअली रहेगा एज वी गो अक्रॉस लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये 11th क्वेश्चन समझ में आया आपको? 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 12th क्वेश्चन में हाँ, सो इसमें एक्चुअली मतलब ठीक है, इट कैन बी अ लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल। ये ए ऑप्शन तो एकदम क्लियर है, अनायन का साइज एटम से ज्यादा होता है और कटायन का साइज एटम से कम होता है, ठीक है। सी ऑप्शन भी एकदम क्लियर है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हम लोगों ने पढ़ा है कि साइज का एक्सेप्शन होता है। अब बी ऑप्शन में मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, मतलब इक्वल टू लिखना इज काइंड ऑफ नॉट अ राइट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट, बिकॉज व्हेन इट सेज इक्वल टू तो हम लोग तो मैथमेटिकली जाते हैं कि हाँ भाई ये तो एकदम ही सेम होंगे। बट कैसा है दशा, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे साइज वाला केस में दीज आर सिमिलर, ठीक है। आयरन कोबाल्ट निकल के साइज काफी आसपास ही रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता था रादर देन डूइंग दिस। ठीक है, देन और क्या पूछा है आप लोगों ने डाउट में? 27 एंड 43। सो 27 में नहीं 27 गड़बड़ हो गया। 27 ये नहीं देना चाहिए था अभी। ये एक्वस आयन का साइज आपको नहीं आता है अभी। अगर मैंने 27 दे दिया है तो आई थिंक गलती से दे दिया है। मैं शायद हर साल ही ये गलती करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, जल्दी जल्दी देखने के चक्कर में। ये एक्वस आयन का साइज मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, देन 43rd में चार्ज अपॉन साइज रेशियो। तो चार्ज तो आप देख सकते हो कि 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, एंड साइज आप कंपेयर कर लो ना। साइज में मतलब आपको कुछ कुछ ट्रेंड्स तो पता ही है, जैसे मैग्नीशियम और बेरिलियम 2+ में बेरिलियम 2+ छोटा है, ठीक है। तो इफ आई लुक एट चार्ज अपॉन साइज रेशियो, तो मैग्नीशियम और बेरिलियम 2+ चार्ज तो सेम है, अब साइज बेरिलियम का छोटा है तो रेशियो
ऑफ चार्ज अपॉन साइज बेरिलियम का ज्यादा होना चाहिए मैग्नीशियम से। ठीक है, तो सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ए बी एंड डी में हम देखेंगे। ओके, देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में कंपेयर करो तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में अगेन दोनों में चार्ज सेम है, साइज ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर, तो उसका रेशियो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन एंड हाँ बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, क्योंकि बी ऑप्शन में कैल्शियम 2+ का चार्ज अपॉन साइज रेशियो ज्यादा बता दिया है एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब पोटेशियम को आपको देखना है ए एंड डी ऑप्शन के बीच में। तो पोटेशियम किसके साथ में बेस्ट कंपेयर हो सकता है? आई वुड रेकमेंड कैल्शियम के साथ में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन रहा है ये मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम 2+ एंड K+। ठीक है, एंड इसमें अब आप नोटिस करोगे तो कैल्शियम 2+ का साइज छोटा रहेगा एंड चार्ज ज्यादा रहेगा। तो कैल्शियम 2+ का अगर चार्ज ज्यादा है और साइज भी छोटा है तो चार्ज अपॉन साइज रेशियो K+ से ज्यादा ही होगा ना, तो दैट मेक्स डी ऑप्शन एज द क्लियर चॉइस। ठीक है, ऑल राइट, सो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। देन अब नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको भेज देता हूँ दिस सिमिलर वे कि ये आज के नोट्स और जूम का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। देन आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट लेक्चर्स टू वॉच एंड देन you can also attempt more questions from the booklet। ठीक है, ठीक है, हाँ, सो अभी आई एम नॉट श्योर कि आपका नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगा। आपका TTS वाला शेड्यूल तो ऑलरेडी सेट है, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। तो अगर लेक्चर मंडे को हुआ तो आपके पास 2 ही दिन है, सैटरडे संडे। बट अगर मान लो लेक्चर वेडनेसडे को हुआ, ठीक है, तो फिर मैं आपको 2-3 लेक्चर एक साथ लिखने के लिए देखने के लिए बोल दूंगा। ठीक है, तो लेट मी फिगर आउट कि आपका नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट क्लास कब है। ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ एंड अकॉर्डिंगली देन आई विल ask you to watch the video lectures and do the homework। ठीक है, all right, चलो, thank you guys। कुछ पूछना है तो बताओ, otherwise we'll close the session for the day। all right, चलो, thank you guys, bye bye।